السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاستی حکومت کی جانب سے رات کے کرفیو کے نفاذ کے اعلان کے بعد گزشتہ رات کرفیو کے بعد تمام بازاروں کو وقت سے پہلے بند کر دیا گیا۔ مساجد میں نماز تراویح کے لیے 10 بجے تک رعایت رہے گی۔ حکومت کی پولیس عہدیداروں کو ہدایت، تجارتی اور ہوٹلوں کو معاملے میں سختی کی جائے گی۔ مکہ مسجد میں تراویح کا سلسلہ جاری، کئی مساجد میں اوقات نماز کی تبدیلی۔ پڑوسی ریاستوں میں کورونا میں شدت کے سبب تلنگانہ میں کیسز میں اضافہ، عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، 95% کا گھر پر علاج، وزیر صحت ایٹالہ راجندر کا بیان۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے چیف منسٹر کی صحتیابی کے لیے درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ میں چادر گل پیش کی۔ نائٹ کرفیو پر سختی سے عمل آوری میں تعاون کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ KCR کو انسانیت دوست قائد قرار دیا۔ کورونا کا از خود علاج کرنا خطرناک ثابت ہوگا، اینٹی بایوٹک دواؤں سے جگر متاثر ہو سکتا ہے، ماہر ڈاکٹرز کا انتباہ۔ آدھار کارڈ کی اجرائی میں حیدرآباد کا نیا ریکارڈ، آبادی سے زیادہ آدھار کارڈز کی اجرائی، غیر مقامی افراد کی شمولیت۔ SSC طلبہ کو FA1 کی بنیاد پر نشانات، تلنگانہ کے محکمہ تعلیم کی سفارشات حکومت کو پیش۔ ریاست میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر کووڈ کنٹرول روم حیدرآباد دوبارہ کارگرد، سیکرٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 6542 نئے کیسز درج، 20 افراد کی ہوئی موت۔ آندھرا پردیش میں اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان، SSC اور انٹر امتحانات مقررہ شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ ناظرین اور اب خبروں کی تفصیل پر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے نائٹ کرفیو کا اعلان کرنے کے بعد آج 9 بجے کے بعد روڈ پر کوئی بھی نہیں دیکھا گیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے فلک نما، چندرائن گٹا، چھتری ناکا پولیس اسٹیشن کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی جیسے کہ موزم جاہی مارکیٹ، مہدی پٹنم، بشیر باغ، حج ہاؤس اور دیگر علاقوں میں نائٹ کرفیو کا منظر دیکھا گیا، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سخت بندوبست بھی پولیس کی جانب سے کیا گیا۔ نائٹ کرفیو کے دوران اور جو بھی باہر نکلے گا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈاکٹرز، پیشنٹس اور میڈیا پرسنز کو نائٹ کرفیو میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن انہیں بھی ID کارڈ بتانے کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، پرانے شہر اور نئے شہر کے کچھ جھلکیاں پولیس کا بندوبست جملہ 46 چیک پوسٹ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے شہر میں لگائے گئے۔ بے وجہ سڑکوں پر گھومنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے بھی پولیس نے اعلان کیا ہے اور ان کی گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ اگر بچے بھی بلا وجہ گھر کے باہر نکلیں گے تو ان کے ماں باپ کو پولیس کی جانب سے کاؤنسلنگ کی جائے گی۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر حکومت کی جانب سے ریاست میں نائٹ کرفیو کے نفاذ کے بعد رمضان المبارک کی خصوصی عبادت تراویح کے متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت اور محکمہ پولیس کو مختلف گوشوں سے نمائندگیاں وصول ہوئی ہیں کہ 9 بجے سے کرفیو کے نفاذ کے باوجود مساجد میں تراویح کے لیے آدھے سے 1 گھنٹہ کی رعایت دی جائے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے مساجد میں نماز تراویح کے لیے 9:30 تا 10 بجے تک رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم اس سلسلے میں کوئی احکامات جاری نہیں کیے جائیں گے۔ مساجد میں اعتراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے افراد کو نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے
غیر سرکاری طور پر یہ رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مساجد کمیٹیوں کو اس سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے نماز عشاء کے اوقات میں تبدیلی کرتے ہوئے 10 بجے تک تراویح کی تکمیل کا موقع مل سکتا ہے۔ تاریخی مکہ مسجد جہاں نماز عشاء 9 بجے مقرر تھی، وہاں نماز عشاء کا وقت 8 بجے مقرر کیا گیا اور 10 بجے تک حافظ و قاری محمد رضوان قریشی تراویح میں 3 پارے سنا رہے ہیں۔ اس تبدیلی پر عمل آوری سے شروع ہو چکی ہے۔ کئی مساجد میں نماز عشاء کے وقت کو تبدیل کرتے ہوئے تراویح کی جلد تکمیل کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پہلے دہے کے اختتام کے لیے محض 3 دن باقی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے تمام پولیس اسٹیشنوں کو اس رعایت کے بارے میں واقف کرا دیا ہے۔ رات 9 بجے تمام تجارتی ادارے اور دکانات اور ہوٹلیں بند کرا دی جائیں گی اور سڑکوں پر غیر ضروری گھومنے والے افراد کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تاہم مساجد کے پاس تراویح کے لیے 1 گھنٹے کی رعایت دی جائے گی۔ پہلے دہے میں بعض مساجد میں 6 اور 5 پاروں کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں قرآن مجید کی تکمیل ہو چکی ہے۔ پولیس کی جانب سے اس رعایت کی صورت میں توقع ہے کہ مساجد نماز تراویح سے خالی نہیں رہیں گی۔ وزیر صحت اٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کورونا کیسز میں اضافے کی اہم وجہ پڑوسی ریاستوں میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر سے عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ پہلی لہر کے مقابلے متاثرین کی تعداد زیادہ ہے، لیکن 95% افراد اسپتال میں شریک ہوئے بغیر ہی صحت یاب ہو رہے ہیں۔ انہیں آکسیجن یا وینٹیلیٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 5% مریضوں کو علاج کے لیے دواخانوں سے رجوع کیا جا رہا۔ اٹالہ راجندر نے سوریا پیٹ ضلع کا دورہ کرتے ہوئے سرکاری دواخانوں میں کورونا علاج کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی کے ہمراہ وزیر صحت نے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ماں اور بچوں کی نگہداشت کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی پڑوسی ریاستوں میں کیسز میں اضافے کا اثر ریاست پر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کورونا سے نمٹنے کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ سوریا پیٹ میں 17 کروڑ کے مصارف سے 250 بستروں پر مشتمل ماں اور بچے کی نگہداشت سینٹر کا افتتاح عمل میں آیا۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے TRS سینئر مسلم قائدین کے ساتھ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ شریف میں حاضری دیتے ہوئے چادر و گل چڑھائی۔ بادشاہ مولانا سید حبیب شاہ عرف سعد بابا نے سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دعا کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ کی جلد صحت یابی اور کورونا سے نجات کی دعا فرمائی۔ تلنگانہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ کورونا مثبت پائے گئے ہیں، جو کافی تکلیف دہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR انسان دوست قائد ہیں جو ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ KCR نے مختصر سے عرصے میں تلنگانہ ریاست کو ملک بھر میں مثالی ریاست میں تبدیل کیا اور عوام کے لیے جدید اسکیمات عمل میں لائے، جس سے ریاست کے تمام عوام مستفیض ہو رہے ہیں۔ رات کا کرفیو کے متعلق نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس قدم کو اٹھایا۔ تلنگانہ حکومت ہمیشہ عوام کو راحت فراہم کرنے کی پابند ہے، کبھی بھی عوام کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ ناظرین، وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب۔ کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی،
घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में इस कदर इजाफा हुआ है कि अवाम को दवाखानों में बिस्तरों के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। बिस्तरों की कमी और खानगी दवाखानों में इलाज के लिए भारी रकूमात के मुतालबे के सबब अवाम घर पर खुद अपना इलाज करने को तरजीह दे रहे, अपने से दवाओं का तयन करते हुए इस्तेमाल करने के वाकयात पेश आए हैं। डॉक्टर्स ने इंतबाह दिया है कि कोरोना जैसे मर्ज में अपनी मर्जी के मुताबिक अद्वियात के इस्तेमाल से जिगर मुतासिर हो सकता है, जो कि इंसानी जिस्म का अहम हिस्सा है। वर्ल्ड लीवर डे के मौके पर डॉक्टर्स ने कहा कि खुद का इलाज करने का रुझान अवाम में आम हो रहा। बुखार, खांसी, सर्दी जैसी बीमारियों से निमटने के लिए अवाम अपने से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे। हालांकि ये कोरोना की बुनियादी अलामत है। डॉक्टर्स ने कहा कि वायरस के मुकाबले के लिए एंटीबायोटिक अद्वियात मुयस्सर साबित नहीं हो सकती। ये सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में असरअंदाज होती हैं। कोरोना का शिकार अफराद दरअसल वायरस से मुतासिरा हैं, लिहाजा उन पर एंटीबायोटिक्स दवाएं असर नहीं करेंगी। डॉक्टर्स का कहना है कि अपने से इलाज करने से कबल अवाम को किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। डॉक्टरों ने कहा है कि सेल्फ मेडिकेशन अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसानदाह साबित होता है। आधार कार्ड की इजराई के मामले में हैदराबाद ने रिकॉर्ड कायम किया है, जहां आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए। माइग्रेंट वर्कर्स और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा की जानिब से आधार कार्ड के लिए अपना नाम रजिस्टर कराने के सबब हैदराबाद में आबादी से ज्यादा कार्ड्स की इजराई की इतला मिली है। आधार कार्ड अथॉरिटी के आदाद व शुमार के मुताबिक 1,21,00,000 आधार कार्ड हैदराबाद में जारी हुए हैं। दिल्ली और मुंबई को आधार की इजराई के सिलसिले में दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल हुआ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के अलावा शुमाल मशरकी रियासतों के माइग्रेंट अफराद तालीम और रोजगार के लिए हैदराबाद में मुकीम है। इसके अलावा IT, हेल्थ और सनती शोबेजात से वाबस्ता अफराद की कसर तादाद हैदराबाद में मुकीम है। कई बरसों से हैदराबाद में तालीम हासिल करने वाले तलबा ने भी आधार कार्ड के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है। आधार के लिए बैंकिंग और दीगर सरगर्मियां अहम सबूत साबित हो सकती हैं। 1999 था 2001 के दरमियान हैदराबाद में आबादी की शरह में इजाफा 28.91% दर्ज किया गया, जबकि 2011 तक ये घटकर 26% हो चुका है। 2011 मर्दमशुमारी के मुताबिक हैदराबाद की आबादी 74,04,000 है, जो 2017 तक 93,06,000 हो चुकी है। शहर की मौजूदा आबादी 1,10,00,000 रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर SSC इम्तिहानात मनसूख करने का ऐलान किया। ताहम तलबा को FA1 के मुजाहिरे की बुनियाद पर निशानात अलॉट किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के पास ये वाहिद रास्ता है जिसके तहत तलबा को निशानात अलॉट किए जा सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो FA1 में शरीक नहीं हुए ताहम उन्होंने SSC इम्तिहान के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराया था, ऐसे तलबा को इम्कान है कि तमाम मज़ामीन में कम से कम पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। अहदेदारों के मुताबिक SSC बोर्ड 26 अप्रैल तक हुकूमत को अपनी तजावीज़ पेश करेगा। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात S नारायण रेड्डी ने कहा है कि SSC तलबा को निशानात अलॉट करने का वाहिद रास्ता FA1 में कारकर्दगी है। उन्होंने कहा है कि FA1 इम्तिहान में तकरीबन 90% तलबा ने हिस्सा लिया था, जो मार्च 2021 को मुनक़िद हुआ था। उन्होंने कहा है कि तलबा की हाजिरी को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जारिया तालीमी साल स्कूल बमुश्किल 1 या 2 महीने खुले रहे। उन्होंने कहा है कि स्कूलों की जानिब से FA1 में तलबा के निशानात की तफसीलात अपलोड की जा रही हैं। इस काम की तकमील के बाद FA1 में हिस्सा लेने वाले तलबा की हकीकी तादाद का पता चलेगा। कोरोना वबा और स्कूलों के बंद होने के सबब महकमे तालीम ने असेसमेंट की तादाद को निस्फ करने का फैसला किया है। 2020-21 तालीमी साल के लिए असेसमेंट इम्तिहानात में कमी की गई है।
रियासत में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नजर कोविड-19 कंट्रोल रूम हैदराबाद में दोबारा कारगर हो जाएगा। सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्क अरविंद कुमार ने जेएचएमसी में कंट्रोल रूम दोबारा शुरू करने की हिदायत दी है। कंट्रोल रूम के जरिए अवाम को 24 घंटे कोरोना से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाएंगी और इस पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दामात से भी वाकिफ करवाया जाएगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 6,542 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 20 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इसी के साथ कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की कुल तादाद 3,67,901 हो गई और अब तक मरने वालों की तादाद 1,876 हो गई। आदिलाबाद में 98 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह भद्रादरी कोत्तागुड़म में 128, जीएचएमसी में 898, जगतियाल में 230, जनगांव में 84, जयशंकर भोपालपल्ली में 32, जोगुलांबा गढ़वाल में 48, कामारेड्डी में 235, करीमनगर में 203, खम्मम में 246, कुमरम भीम आसिफाबाद में 37, महबूबनगर में 263, महबूबाबाद में 64, मंचरियाल में 176, मेदक में 131, मेडचल मलकाजगिरी में 570, मुलगू में 42, नागर कर्नूल में 131, नलगुंडा में 285, नारायणपेट में 37, निर्मल में 143, निजामाबाद में 427, पेद्दापल्ली में 96, राजन्ना सिरसिल्ला में 124, रंगारेड्डी में 532, संगारेड्डी में 320, सिद्दीपेट में 147, सूर्यापेट में 130, विकाराबाद में 135, वनापर्ती में 81, वरंगल रूरल में 85, वरंगल अर्बन में 244 और यदाद्री भोंगिर में 140 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो रियासत में नाफिज कर्फ्यू को 9 बजे के बजाय रात 10 बजे से शुरू करे ताकि दूर दराज इलाकों में काम करने वाले अफराद को घर वापस होने में मुश्किलात न हो पाए। इसी तरह सदर मजलिस ने कर्फ्यू के दौरान दूध की दुकानात को खुली रखने की इजाजत देने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के निफाज से मुतालिक जारी अहकामात में दूध को शामिल नहीं किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोजाना कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया जो 1 मई तक जारी रहेगा। कर्फ्यू को 1 घंटे बाद शुरू करने की दरख्वास्त करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की है, ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से रात का कर्फ्यू नाफिज करने के ऐलान के बाद पुलिस कॉलोनियों में गैर मशरूत तौर पर कॉलोनियों में घूमते हुए गाड़ियों और पैदल चलने वालों की मशावरत करते हुए पहाड़ी शरीफ और बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत इलाकों में कारोबारी कॉम्प्लेक्स को बंद करवा रही और कहा जा रहा है कि अगर ये बिला जवाज सड़कों पर आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ी शरीफ पीएस के सीआई विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने अमले के हमरा गाड़ियों के साथ एयरपोर्ट रोड और श्रीसैलम शाहरा वो पहाड़ी शरीफ इलाके के मरकजी सड़क पर 2 चेक पोस्ट कायम किए हैं और इस दौरान गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। इस मौके पर सीआई पहाड़ी शरीफ विष्णुवर्धन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ఈ రోజు నుంచి మన ఏదైతే మన గవర్నమెంట్ కర్ఫ్యూ విధించడానికి ఆదేశాలు ఇచ్చారో నైట్ కర్ఫ్యూ ఉదయం సాయంకాలము 9 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు ఎవరు కానీ అనవసరంగా బయటికి రాకుండా తమరు ఈ ఇచ్చిన టైం లోపలనే ఉదయం 5 గంటల నుంచి సాయంకాలం 9 గంటలనే తమ పనులు నిర్వర్తించుకొని అనవసరంగా బయట తిరగకూడదని ఈ యొక్క పహాడి షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో 2 చెక్ పోస్టులు నిర్వహించడం జరిగింది. ఒకటి తుక్కుగూడ, ఇంకొకటి మన పోలీస్ స్టేషన్ ముందు. ఇది శ్రీశైలం హైవే కల్వకుర్తి, అచ్చంపేట, మహబూబ్ నగర్ ఎయిర్పోర్టు నుంచి వచ్చే వాహనాలను తనిఖీలు చేయడం జరుగుతుంది. అనవసరంగా ప్రజలు తిరగడానికి వీలు కాకుండా చూసుకోవాలి. తమరు పని ఇచ్చిన టైం లోపలనే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ప్రజలకు అప్రమత్తంగా ఉండి మన గవర్నమెంట్కు ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం జరగకుండా తమరు ఈ కోవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా మాస్కులు ధరించి ఉండాలని మేము పోలీస్ వారి తరఫు నుంచి
చెక్ పోస్టులు నిర్వహించి మరి కర్ఫ్యూ ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి చెక్ పోస్టులో కూడా ఒక ఎస్ఐ, 2 ఉమెన్ పీసీలు, ఒక 4 మంది జవాన్లు, మొత్తం 6 మందితోన ఒక్కొక్క చెక్ పోస్టులో సిబ్బందిని పెట్టి తనిఖీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అనవసరమైన వ్యక్తులు బయటకు వచ్చి ఈ కోవిడ్కు బారిన పడకుండా ఉండాలని అందరు ప్రజలతోనే మేము విన్నవించుకుంటున్నాం. नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। पहली ता 9वीं जमात तमाम क्लासेस को छुट्टी दे दी गई है। ताहम एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक मुनाकिद करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने आला सतह इजलास में ये फैसला किया। उन्होंने वजीर सेहत, वजीर तालीम और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों के साथ रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। हुकूमत ने एसएससी और इंटर इम्तिहानात को मुकर्ररा तारीख पर मुनक़िद करने का फैसला किया। हुकूमत ने कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए रियासत में बाज दीगर तहदीदात का फैसला किया। तमाम सिनेमा थिएटर्स, फंक्शन हॉल्स और अवामी मुकामात पर समाजी फासले की बरकरारी को लाजमी करार दिया गया है। थिएटर्स में हर 2 निशस्त के दरमियान एक निशस्त को खाली रखा जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लाजमी किया गया है। होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर इदारों को समाजी फासले की बरकरारी की हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने दवाखानों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। इस बात की इत्तला राहुल गांधी ने खुद अपने ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना के अलामात जाहिर होने पर उन्होंने टेस्ट करवाया, जिसमें वो मुस्बित पाए गए। उन्होंने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि हालिया दिनों उनसे मुलाकात करने वाले भी अपने अपने कोरोना के टेस्ट करवा लें। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की जानिब से रात के कर्फ्यू के निफाज के ऐलान के बाद गुज़िश्ता रात कर्फ्यू के बाद तमाम बाजारों को वक्त से पहले बंद कर दिया गया। मसाजिद में नमाज तरावी के लिए 10 बजे तक रियायत रहेगी। हुकूमत की पुलिस ओहदेदारों को हिदायत, तिजारती और होटलों को मामले में सख्ती की जाएगी। मक्का मस्जिद में तरावी का सिलसिला जारी, कई मसाजिद में औकात नमाज की तब्दीली। पड़ोसी रियासतों में कोरोना में शिद्दत के सबब तेलंगाना में केसेस में इजाफा, अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, 95% का घर पर इलाज, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र का बयान। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर की सेहतियाबी के लिए दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में चादर गुल पेश की। नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमल आवारी में ताउन करने की अवाम से अपील की। केसीआर को इंसानियत दोस्त कायद करार दिया। कोरोना का अज खुद इलाज करना खतरनाक साबित होगा, एंटीबायोटिक दवाओं से जिगर मुतासिर हो सकता है, माहिर डॉक्टर्स का इंतबाह।
आधार कार्ड की इजराई में हैदराबाद का नया रिकॉर्ड, आबादी से ज्यादा आधार कार्ड्स की इजराई, गैर मुकामी अफराद की शमूलियत। SSC तलबा को FA1 की बुनियाद पर निशानात, तेलंगाना के महकमे तालीम की सिफारिशात हुकूमत को पेश। रियासत में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नजर कोविड कंट्रोल रूम हैदराबाद दोबारा कारगर, सेक्रेटरी बल्दी नज़्मो नस्क अरविंद कुमार। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,542 नए केसेस दर्ज, 20 अफराद की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का ऐलान, SSC और इंटर इम्तिहानात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इसी के साथ KBN न्यूज का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।